पहले से ही। Now we are live on Facebook. Namaskar. This is Emily Ghosh from ICMC. Today is 3rd of September. As we all know, it's the birthday of Padma Vibhushan Pandit Kishan Maharaj. So it's an honor for ICMC Indian Classical Music Circle to start the session of the birthday of Pandit Kishan Maharaj ji with his own flavor. Today we have with us Pandit Puran Maharaj ji and Sanju Bhaiya, Sanju Sahai ji. So it's the turn for Ram Prapunna, please. नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हम महाराज जी को याद कर रहे हैं। हम कुछ शब्दों में आईसीएमसी का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सर्कल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। As उस्ताद अली अकबर खान साहब said once, real music is not for wealth, not for honor, or even the joy of the mind, but the path for realization and salvation. The roots of classical music of India are found in the Vedic literature and ancient Natya Shastra, the classic text on performing arts by Bharat Muni. Indian classical music has two foundational elements, rag and tal. So ICMC is also creating a bridge between rag, which is based on swar, and tal, which measures the time cycle. One of the prime goal of ICMC is to remember the great legends of Indian classical music. As part of its tribute series, we are remembering Padma Vibhushan Pandit Kishan Maharaj ji on his birthday today, as Emily has already mentioned. We are extremely honored and privileged to have our distinguished musicians with us to share their own experience, insight with all of us on the music, philosophy, and personality of our respected Maharaj ji. So that's all about ICMC. Now, up to Emily. Banaras is a city on the banks of the river Ganga, whose flavor in one side is combined with Kalidas, Kabir, Guru Nanak, and in another side, Anokhe Lal ji, Ram Sahai ji, Bismillah Khan Sahab, Kishan Maharaj ji, Shamta Prasad ji, Birju Maharaj ji, and many more class of musicians. 3rd of September, on the eve of Janmashtami, came a warrior of Indian classical music, Padma Vibhushan Pandit Kishan Maharaj. Now we will start our evening with Maharaj's own voice. So we will share a small audiovisual presentation on him.
त्रिक धाय ताड़ा ताड़ा कद घन धाड़ धाक धगिन धा द्रिगुण धाय का केण न कतन ता त्रिक धा धरिगुण धारिगुण ता त्रिक धरिगुण ता कां त्रिक धा त्रिक धा धरिगुण ता ता त्रिक धरिगुण ता कां त्रिक धा त्रिक धा धरिगुण ता त्रिक धा धरिगुण धारिगुण कां त्रिक धा What an amazing beginning. The mood is all set. Oh my God, this is unbelievable. Emily. या ज्यादा हम दोनों बात करके ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। बेहतर है महाराज जी आप, संजू भैया आप दोनों आपस में जो कहना चाहते हैं, जितने सारे एक्सपीरियंसेस है, महाराज जी आप लोग के सामने बहुत दिन रहे, आप लोग बहुत ज्यादा सही तरीके से बहुत एकदम अंदर तक देखे हैं, थोड़ा हम लोग भी सुनना चाहते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा जी शुरुआत करें, इनसे आज्ञा ले करके शुरू करिए। इनको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं और बहुत खुशी है कि इस बहाने आपका दर्शन हो जा रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इनका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ रहता है। और सबसे पहले हम सभी को वेलकम करना चाहते हैं आईसीएमसी की तरफ से भी, और आईसीएमसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और जो ये राग ताल को मिलाने की बात है, राग ताल तो हैंड इन हैंड आजीवन से है। हमारा जो गाना बजाना है, जीवन है, वो अधूरा रहता है अगर हम इनमें से किसी एक चीज को नहीं करते हैं। और अभी आपने जो रिकॉर्डिंग बजाया, पहले तो बब्बा का दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए, और हर एक तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। बहुत सारे उनके पर्सनल फोटो भी थे, जिसमें वो एक शादी में हैं, स्टेज वाला है, फिर कलाकारों के साथ। आप देखिए कि कैसी उनकी मेल मिलाप थी। लोग डरते हुए भी, मतलब उनके सामने भी होते थे तो डरते थे, लेकिन आपने देखा फोटो में क्या उनके चेहरे पे रोशनी, और हमेशा अंत समय तक वही रोशनी बरकरार रही। मैंने उनको हमेशा ऐसे ही देखा है जब से होश संभाला। पहले हम लोग बहुत 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 डरते थे, मतलब घर जाने में भी डरते थे, और मतलब चाचा जी के थ्रू कि अरे बब्बा कहाँ है, और अंदर हैं बब्बा, अंदर हैं, आ जाओ। ये हम लोग को थोड़ा सेट कर देते थे, साहस दे देते थे, तो हम बैठे रहते थे। फिर उनकी एंट्री अगर होती थी तो मतलब धड़कन जो है काफी तेज रहती थी। हालांकि वो इतने मतलब प्यार से मिलते थे और मुझे पोता कहते थे, आवा आवा पोता बनारसी में कह करके, और हमेशा अपने पास बैठाते थे। और
मैं क्या कहूँ, मतलब जब से तबले से तो बचपन से ही जुड़े रहे, और अगर आप तबले से जुड़े हैं तो तबले के देवताओं से तो आपको परिचय उसी समय से हो जाता है। तो हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन कभी भी एक कॉन्सर्ट इनका मिस नहीं किया। और आपको पता है सारी रात का जलसा होता था, और जितने भी ऐसे महान कलाकार, उनका आइटम हमेशा लास्ट में ही पड़ता था। आप 3 बजे सुबह तक प्रतीक्षा करिए, 4 बजे तक करिए, कोई ऐसा साधन था नहीं। अब आप चले गए हैं तो आपको सारी रात रुक करके उनका सुन करके आना है। और अगर ऐसे ऐसे महान आत्माओं के साथ जब उनका प्रोग्राम रहता था बब्बा का, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, अमजद अली खान साहब, और बहुत बड़े बड़े देश के सारे ये कलाकारों के साथ में वो लोग 4-5 घंटे का प्रोग्राम करते थे। सुबह अगर विलायत खान साहब ने अगर 4 बजे बंद कर दिया बजाना, तो पीछे से आवाज आने लगती थी कि अरे खान साहब आप क्या ऐसे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो चाय का दुकान भी नहीं खोला है, रिक्शा वाला भी नहीं है, मतलब कम से कम तो 6 बजाइए। ऐसे कैसे आपने 4 बजे ही खत्म कर दिया? तो फिर वो 1-2 घंटे का उनका फिर भैरवी भी बजता था। मतलब अब हम जहाँ अभी रहते हैं, ये सब एक सच में एक किस्से कहानी जैसी ही बात हो गई है। यहाँ पे घड़ी देख करके 45 मिनट का पहला हाफ होता है और 45 मिनट का दूसरा हाफ होता है, और एक तरीके से गाना बजाना, मुस्कुराना सब सेट होता है। कौन सा कपड़ा पहनेंगे, किस तरफ देखेंगे, और सारा कुछ एक तरीके से एक पैकेज हो गया है। उस समय ऐसा नहीं था कि बजा रहे हैं तो 3 घंटे का आला भी विलायत खान साहब आपको पता ही है कैसे बजाते थे। खैर, मैं थोड़ा वेलकम करना चाहता हूँ हमारे देश के, हमारे संगीत जगत के विख्यात तबला वादक पंडित पूरण महाराज जी, जो हमारे साथ हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि वो इसमें शामिल आपके कहने पे और हमारे आग्रह पे आ गए हैं, और हम लोग को आशीर्वाद देंगे। और बहुत सारी बातें जो सारी दुनिया को नहीं पता है, जो साइड जिसको मतलब पंडित केशव महाराज जी, जिनको मैं बब्बा कहता था, बब्बा मतलब दादाजी, उनका बहुत सारा जो दिनचर्या या उनका जो रहन सहन, जिस तरीके से वो उनका सोच विचार था, मैंने सारी जिंदगी उनको जल्दी में कुछ बोलते सुना ही नहीं। वो हड़बड़ी वाला काम कुछ किए ही नहीं। जैसे वो हर चीज का उनका एक अलग ही रिदम था, चाहे वो बोलने में हो, चाहे बजाने में हो, चाहे कुछ भी करने में हो। उनका गुस्सा से लेकर के प्यार से लेकर हर चीज अनूठा था। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हाफ हार्टेड, उन्होंने कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। जो किया उन्होंने पूरे कमिटमेंट के साथ में किया। पान खा रहे हैं तो पान खा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि पान खा रहे हैं। इत्र लगाए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इत्र लगाए हैं। वो आए हैं, बस उसी से आपको पता लग जाता था कि रोशनी जैसे आ गई है, रूम में प्रकाश हो गया है, मतलब उनका होना ही। और सारी जन्म, सारी जिंदगी वो ऐसे ही थे, कोई कहीं से भी कुछ कभी नहीं आई। तो आइए आमंत्रित करते हैं पंडित पूरण महाराज जी को, जिनको मैं प्यार से चच्चा कहता हूँ बनारसी में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए पिताजी के बारे में, कैसा रहा आपका बचपन से उनके साथ रहना, या उनके कुछ भी जो भी आपको स्पेशल बातें हों जो सभी को नहीं पता है, आप शेयर करें। धन्यवाद संजू लाल। पालाजी।
आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ICMC इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सर्कल की तरफ से हमको और तुमको निमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं एमिली घोष जी और राम दादा के बहुत ही आभारी हैं। सब पापा के ऊपर बोलना और किसके साथ बोलना, संजू सहाय के साथ। क्या आइडिया था यामिनी जी का, उस आइडिया को मैं बहुत पसंद किया। और किसी के साथ हमको बोलना पड़ता, सबसे उतना लिंक नहीं बन पाता, किसी किसी से ही लिंक बनता है। तो संजू हम लोगों के बचपन से बड़े प्रिय पात्र रहे हैं। इनका तबला भी हमको बहुत पसंद है। और हम ही को नहीं, मेरे दादाजी पंडित कंठे महाराज, मेरे पिताजी पंडित किशन महाराज, मेरे और मेरा भांजा है शुभ के भी ये बड़े पसंदीदा कलाकार हैं। संजू का मिजाज ऐसा है, संजू का तबला ऐसा है। तो आज संजू के साथ पापा का जो हम परिचय या पापा के लिए कुछ बोलेंगे, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन लोगों ने संजू सहाय को चूज किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जितनी कड़ाई में पले बड़े हैं, आज के बच्चे उतनी कड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पापा इतने सख्त पिता थे, इतने सख्त गार्जियन थे कि जो हम अभी अगर किसी को कहते हैं, अपने घर में कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो जमाना नहीं रहा। हम लोगों ने वो जमाना देखा है कि कितनी कड़ाई से हम लोगों का लालन पालन हुआ है, और कैसे हम लोगों ने शुरुआत किया है, कैसे हम लोगों ने रियाज किया है, कैसे हम लोगों को बजवाया गया, कैसे सिखलाया गया। इसमें पिताजी का पूरा हाथ था। उन्होंने मार्ग निर्देशन किया और मैं दादाजी से शिष्य बना। और कभी कभी पापा भी हम लोग को देखते थे। पापा के पास जाने में हम लोग डरते थे, क्योंकि पापा मुंह से कम बोलते थे और हाथ से ज्यादा बोलते थे। एक आध बार हथौड़ी से भी बोले हैं, छड़ी से भी बोले हैं। तो हम लोग उनको बचते थे कि पाला न पड़े पिताजी से। हमारे बब्बा जी सीधे थे। अब वो उनका जो स्वभाव था, वो वही स्वभाव था कि वो किस्सा सुनाते थे कि गए अपने फूफा जी के यहाँ, उनके पिताजी पंडित दिलीप महाराज ले गए थे उनको कि तुम किससे सीखना पसंद करोगे, पंडित राम सहाय जी के आंगन में। अच्छा, मैं संजू को पहले भी एक आध बार बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, बोलते नहीं थे हम। शारदा भैया, रामशंकर भैया बोलते नहीं थे हमारे। हम उनको अपना समझते थे, वो हमारे लगते थे। पापा के बब्बा के गुरु पंडित बलदेव सहाय जी, वो भैया बोलते नहीं थे, भैया लगते थे। संजू सहाय कहा, चाचा हम लगते हैं, तो क्योंकि बचपन से चाचा ही बन के हम उनके घर जाते थे और हमारे यहाँ वो आते थे। तो बप्पा ने कहा, कंठे महाराज जी ने एक तरफ बैठे थे, दाढ़ी मूछ ध्यान लगा के कुछ कर रहे थे, अपने मगन थे।
जाके प्रणाम किए। ऐसे हमारे तरफ देखे पंडित भैरव साहब जी, बप्पा के सगे फूफा जी थे, और कि हम डर गए बेटा, कहते थे बब्बा, उनका नेचर हम बतला रहे हैं। और अपने गुरु को देखे, भैया को देखे, जाके प्रणाम किए, ऐसा देख के मुस्कुराए कि मेरा कलेजा गदगद हो गया। हमको लगा साक्षात हम भगवान को देख रहे हैं। उनके सगे मामा फूफू के भाई थे, और उस जमाने के महाविद्वान वो लोग थे, और गुरु घर के थे, पंडित राम साहब जी के फैमिली के थे। तो हम लोग के यहाँ के लिए, पूरे बनारस के लिए एक आदर उस घर के प्रति है। तो बप्पा पहले ही नजर में उनके मुरीद हो गए। तो ये बप्पा का स्वभाव था। बप्पा मीन्स पंडित कंठे महाराज जी। लेकिन पापा का वो अंदर से कितने भी कोमल रहे हो, संजू जी ने फील किया है, संजू साहब को फील हुआ है। हम लोगों को बहुत कम फील हुआ है कि बहुत कोमल थे। कई बार हमने भी अनुभव किया है कि संजू को ज्यादा फील हुआ होगा उनके कोमलताई का। पापा बिल्कुल उलट थे बब्बा के स्वभाव के। इतने, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि पापा इतने कड़क अध्यापक थे। यहाँ जितने शिष्य आए सीखने, उसमें से 10% सीखे होंगे, 10%। संजू लाल जी, संजू, और बाकी 90% मार खा खा के, गाली सुन सुन के भाग गए। कौन सा मिजाज था, उनको परवाह नहीं रहती थी। एक तो स्वाभिमानी बहुत ज्यादा थे वो। लेकिन बच्चे अगर गलती करें या शिष्य अगर गलत करे तो वो क्षमा करने वाले मानते थे अंदर से, लेकिन क्षमा नहीं करते थे। कोई अगर झूठ बोला, कोई अगर कुछ लोचा किया, फिर उनका हाथ और मुंह चलने लगता था। तो अधिकतर लोग यहाँ आए और चले गए छोड़ के। एक शिष्य को मार दिया, वो रातों रात घर फांद के भाग गया, क्योंकि उसको रहना था यहीं पर। और वो तो अब बब्बा कभी मारते नहीं थे। बहुत हुआ जिसको बहुत ज्यादा अपना समझे, कानून पकड़ लिए। हम लोगों को कभी मारे नहीं, कभी कुछ बोल दिए हो अब शब्द नहीं, तो कभी बप्पा का स्वभाव नहीं था। मैं जब बड़ा हुआ तो पिताजी इतने बिजी उस समय रहते थे। पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खां साहब, उस्ताद विलायत खां साहब, सब अच्छे, सितारा देवी जी, गोपी किशन भैया, सभी के साथ काफी बिजी रहते थे। तो बोले कि हमारे घर के दो लड़के, हमारे भतीजे, हमारी तुलना में वो फ्री रहते हैं और लाजवाब बजाते हैं। उनकी देख रेख में तुम जाके रियाज करो और उनसे गाइडेंस प्राप्त करो। तो मैं शारदा भैया के यहाँ और रामशंकर भैया के यहाँ, ये लोग के साथ हम सालों बैठे हैं। तब संजू बहुत छोटे से थे, हमको चिढ़ा के भाग जाते थे, मैं दौड़ाता था मारने के लिए। लेकिन रामशंकर भैया का मिजाज कड़क था। रामशंकर भैया मीन्स संजू साहब जी के पिता, और शारदा भैया मतलब बड़े पिता, जैसे पापा के बड़े पिता। आज एक जगह लेख हमने देखा कि पिताजी ने हरि महाराज जी से सीखा है बहुत कुछ। उनको पता नहीं है, जो लिखे हैं कि हरि महाराज जी से पापा बहुत कम सीख पाए, नहीं सीख पाए, क्योंकि 9 साल के थे पापा तो हरि महाराज जी का निधन हो गया। और हरि महाराज जी
बहुत अस्वस्थ रहते थे। लालन पालन उनका सिखावन सब कुछ कंठे महाराज जी ने किया। तो मैं जाता था कभी कभी, जब शारदा भैया चले जाते थे कार्यक्रमों में, रामशंकर भैया रहते थे, रामशंकर भैया चले जाते थे तो शारदा भैया रहते थे। और नहीं, एक आध बार ऐसा भी संयोग हुआ है, अपने बगल में हमको बैठाते थे, तुम हमारे गुरु के पौत्र हो, तुम उनके पोते हो, पूरन तुम हमारे छोटे भाई हो। हम कहते भैया ये आपका प्यार है, आप तो मेरे चाचा तुल्य हैं, पापा से ज्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं है, पद में तो, लेकिन वो हमारे चाचा है। शारदा भैया से मेरी ऐसी बात होती थी। जब मैं इंग्लैंड जाता था तब भी उनके यहाँ मैं बहुत बार गया हूँ और अधिकतर उनके यहाँ मैं ठहरा हूँ। तो पप्पा का जो संबंध बलदेव साहब जी के यहाँ बना है उसको हम लोग निभा रहे हैं। संजू भी वैसे ऐसे ही प्यारे बच्चे हैं और उसी चीज को पापा ने भी निभाया। पापा ने भी निभाया। वो थोड़े कड़क नेचर के थे, लेकिन अंदर से उनके दिल में क्या रिस्पेक्ट था पंडित राम सहाय जी, पंडित जानकी सहाय जी के प्रति, भैरव सहाय जी के प्रति, बलदेव सहाय जी के प्रति। कितने इज्जत से इनके दादाजी का नाम पंडित भगवती सहाय जी था, जहां तक हमको याद है। इतने इज्जत से पापा नाम लेते थे और ये नहीं कहते थे कि हम भगवती भैया बोलते हैं, ये कहते थे मेरे भगवती भैया थे। तो हमको बड़ा अच्छा बचपन से एक्सपीरियंस है उस घर से जुड़े रहने का। और हमसे शक्ति जब होती है तो मैं कभी कभी जाता हूँ उस घर को, मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारे दादाजी की शिक्षा है। और पिताजी बहुत आस्था रखते थे बनारस घराने से, और बाकी उनके साथ तो हम तो बीच में चले गए थे घर छोड़ के। संजू कुमार बोस जी, पिंकी, ये लोग बहुत जुड़े थे। संजू तो हमारे घर के हैं, मैं तो अपने घर का मानता ही हूँ संजू को। संजू से पापा से बड़ा लगाव था। अब पापा अपना शेयर करते रहे होंगे इनसे अपने दिल की बातें, तो मैं संजू जी से आग्रह करूंगा कि उनके साथ का जो उनको प्रसंग याद हो बतावे, फिर कुछ हम कोशिश करेंगे फिर बोलने का। हाँ संजू लाल, धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए। ये जो है 100% मन से निकली हुई बातें, दिल से निकली हुई बातें, जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं, ये वही आदमी बता सकता है जो उसको क्या कहते हैं, निभाया हो, जो उसके साथ रहा हो, जो उस हालात से गुजरा हो। उनके मतलब मार पीट में वो शक्ति भी तो थी ना। आप देखिए कि जो लोग अच्छा गा बजा रहे हैं, जो उनके शिष्यगण हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने सभी की थोड़ी पिटाई की है, लेकिन उनका एक डांटने का एक स्वभाव ही था। उनको गलत बात बिल्कुल ही नहीं पसंद थी। हम बैठे हुए हैं, उधर बातचीत हो रही है, बहुत एकदम आराम से बात कर रहे हैं, खूब प्रेम से बातचीत चल रहा है, लेकिन उनका कान जो है वो लगा हुआ है कि बैठक में कोई बजा रहा है, और क्यों उनका ध्यान उधर लगा हुआ है, बीच बीच में उसको आवाज भी दे रहे हैं। और फिर कभी कभी मेरे से कहते ठहरो यार ठहरो। अब उनका ठहरो कहने का मतलब कि वो जाएंगे, उसको जाके प्रसाद दे के आएंगे कुछ। तो हम लोग डरते भी थे, अरे रहने दीजिए बाबा, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ देख आता हूँ। या कोई बड़ा बुजुर्ग जाकर के उनको कुछ बोल दे कि अरे भैया ध्यान से बजाओ, क्या कर रहे हो, उधर आएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो मैं तो बाहर काफी रहा, मतलब इंग्लैंड में काफी साल से हूं, लेकिन सौभाग्य से जो मैंने उनके साथ समय गुजारा, वो मतलब इतने साल ना रहने के बावजूद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे के पास नहीं थे। जब भी मैं उनको फोन करता था ना, बब्बा प्रणाम, आपको याद कर रहा था, पता है। मैं कहा आपको मैं रोज
पूजा करता हूँ। अरे पता है उनको, वो पहले से सब। और मैं सही बता रहा हूँ, उन्होंने कभी मेरे साथ गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी भी मुझे डांटा नहीं, प्यार से समझाया। जबकि मैं कितने बार देख चुका हूं अपने, मतलब उनके साथ जब होते थे वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते, लेकिन मेरे साथ पर्सनली कभी नहीं हुए। मतलब जैसा चाचा जी बता रहे थे कि उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति या हमारे घर के प्रति, उन सब, मतलब गुरु घर से संबंधित जितने लोग भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत प्यार करते थे। मैं 2 साल के लिए बनारस गया हुआ था, और उस 2 साल में सौभाग्यवश बहुत समय मैंने उनके साथ गुजारा। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर मैं एक दिन नहीं जाता था तो उनका फ़ोन आ जाता था। और बीच-बीच में मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं काफ़ी साल, 6 साल रह के लगातार गया था, तो गर्मी के वक़्त चला गया। अब वो मुझे सूट किया नहीं, काफ़ी बीमार रहा। तो 2-4 दिन हो गया, उनका दर्शन नहीं हुआ। फिर कभी बीच में फ़ोन करके, "कहाँ हो?" आपने बोला, "कहाँ हो आजकल?" हम कहे, "अरे बाबा, आज वो दीदी के बेटे का जन्मदिन था, और अभी आज भी है, बड़ा देर हो जाएगा।" बोले, "अच्छा, कितना देर हो जाएगा?" अरे मैं कहा, "मतलब बहुत रात हो जाएगी, 12-1 बज सकता है।" "ऐसा करो, वो सब निपटाने के बाद चले आना। मतलब जितना देर होएगा उसको कर लेने दो, जब वहाँ खत्म करोगे तो आ जाना।" समय की पाबंदी नहीं थी, समय की पाबंदी नहीं थी। शाम को प्रेफ़र करते थे, जो लोग आते थे उनसे मिलने-जुलने के लिए, लेकिन सारा दिन ही सिलसिला था, वो तो देवता स्वरूप थे। सुबह से वहाँ सब लोग जाकर के उनका दर्शन करते थे, जो भी कलाकार बनारस में आते थे, बिना उनका दर्शन किए नहीं जाते थे। मतलब वो लिस्ट में थे, बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा देवी, दुर्गा जी और पंडित केशव महाराज जी, वहाँ मिल कर के जाना है। उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होता था उनका जो जर्नी था। तो उस दौरान में काफ़ी लोगों से मुलाकात भी होती थी। जब भी आप जाइए वहाँ पे, क्या अच्छा माहौल था, कोई ना कोई रियाज़ कर रहा है, अब वो अपने तरीके से सिखा रहे हैं। कोई डाँट सुन के सीख रहा है, या उसी से संबंधित कुछ और भी चर्चाएँ शुरू हो जाती थी। लेकिन हमारा जो पर्सनल जो सीखने का समय था, वो शाम का था। और शाम मतलब कि 8 बजे से उनका थोड़ा-सा बैठने का होता था। उसके बाद जाते-जाते 9, 10, 11, 12 बजे तक उनका फिर, अब वो मुझे सब अपनी पुराने लोगों की कहानियाँ, और मैं पता नहीं इतना जी मैंने 2 साल में शायद सारी ज़िंदगी नहीं बोला होगा जितना मैंने वो 2 साल में बोला। बस जी, जी, और उनको सुनता रहता। सो तो नहीं गए? अरे नहीं पापा, जी, जी। और फिर अचानक से घड़ी देखते थे। अरे! अरे यार 3-4 बज, अरे 4, ऐसा ऐसा करो, या तो यहीं सो जाओ, नहीं तो अब तुम जाओ घर। तो मैं इंग्लैंड से गया हुआ था, और मुझे गली के कुत्तों से बहुत डर लगता था। बहुत ही मैं डरता था। तो मैं बड़ा-सा टॉर्च लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर जाता था, और सारे कुत्ते भौं, 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 मगर उनकी भी, मतलब उनसे जान-पहचान बढ़ गई जब मैं हर रोज़ जाने लगा बुब्बा के घर पे। तो उसी दौरान मेरा बर्थडे भी पड़ा, तो मैं सुबह ही जाकर के उनको प्रणाम किया और मिठाई वगैरह, "अच्छा, फिर आज मिठाई लेके आ गई यार, क्या बात है?" पता लगा है कि तुम्हारा कुछ हो रहा है, कुछ घर में कुछ पार्टी-वार्टी रखी है। मुझे नहीं बुलाओगे?" अब मैं तो एकदम डर गया, मैं कहा, "अरे! मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं बब्बा को बोलूँगा कि आप, मतलब उस शोर-शराबे में, वो तो फैमिली ओरिएंटेड था।" तो मैं कहा, "नहीं पापा, इसलिए कि मेरे लिए वो लोग सरप्राइज़ कर रहे थे, तो मुझे खुद भी नहीं पता था। वो तो मैंने, वो कहते हैं झालर, वो पन्नियाँ लग सजाने की, लगाने के लिए, तो वो मैं देख लिया था, तो उससे मुझे आभास हो गया था।" तो मैंने उनको प्रणाम-वणाम करके घर आ गया। आप यकीन नहीं करोगे, शाम के समय इतना बड़ा-सा गुब्बारा, उसपे बब्बा लिख करके,
और मुझे वो अचानक से चले आए। वो सभी जानते हैं कि वो बिना बुलाए या कहाँ जाना है, वो चाचा जी भी हैं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना है, और कहाँ जाना है उसके लिए मतलब आपको उनका पाँव पकड़ना है 100 बार, तभी वो कहीं जाते थे। और शाम को चले आए अपने हाथ से। अब वो केक वो मुझे खिला रहा है, मैं काँप रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का हमेशा पाँव तक ही बात थी, चाहे बब्बा के प्रति हो, चाहे हमारे पापा जी के, हमारे गुरु जी के लिए हो। हम लोग उनसे गले शादी एक आधी बार मिले अपने जीवन में, और अंतिम समय तक पाँव तक ही थी बात। मैं उनके पाँव के पास रहता था, तो वो देख करके उनका मेरे इतने करीब, मतलब मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि मतलब वो उनका जो दूसरा साइड। ये कौन सा साल था, कौन सा ईयर में आप थे वहां पे बनारस गए? 89, 90 एंड 91। तो उसी दौरान उन्होंने उनसे बहुत 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 कुछ सीखने को मिला, सिर्फ तबले के लिए नहीं। तबले में तो वो बैठे बैठे कुछ भी चल रहा है वो तबला सिखा देते थे। हर चीज में सीख है, ये तो सीखने वाले के लिए है। वो आपको बैठ करके इधर लिखवा करके पढ़वा करके थोड़ी सिखाते थे। आप सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही। एक बार और भी ऐसा हुआ, जो मेरे ख्याल से 95 में 2 महान देवता, विलायत खान साहब और बब्बा, इंग्लैंड में, और मैं हफ्ते 10 दिन उन लोगों के साथ में था, और उनके साथ खाना पीना, उनको शॉपिंग ले जाना, वो भी क्या मतलब आजीवन याद रहेगा। वो थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा कुछ एनेक्डोट्स। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। विलायत खान साहब तो बोले कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मैंने कहा मेरे भी कम, मतलब मैं बनारस से हूँ तो वही कमजोरी है, मिठाई बहुत खाता हूँ। बोले यही कमजोरी मेरी भी है, लेकिन ये तुम्हारी जो चाची है ना, खाने नहीं देती। तो मैं कहा मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। अरे बोले ठीक है ले आना। तो मैं बड़ा सा, इतना बड़ा सा बॉक्स लेकर के वो बकलावा का पहुंच गया, वो मिडल ईस्टर्न। तो उनको बहुत ही पसंद था, लेकिन वो कह रहे कि जाते ही मतलब मेरे से विस्पर कर रहे हैं, अरे छिपा दो, रख दो, यही रख दो, ऐसे, क्योंकि अगर वाइफ देख लेंगे तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो बब्बा को एक दाढ़ी बनाने वाला ब्रश चाहिए था। तो ऐसे बैठे थे और मैंने को बोला कि यार एक ब्रश खरीदना है। तो मैं कहा जी कौन चीज के लिए? अरे वो दाढ़ी बनाने का। तो मैंने सोचा इतना बड़ा ब्रश, ये कौन सा ब्रश है, मेरे समझ में नहीं आया। तो बोले हमारे बहुत मित्र हैं लाला श्रीधर जी, उनके लिए मैं 65 में ले गया था, तुम पैदा नहीं हुए थे उस समय, मैं आया था इंग्लैंड, और एक ब्रश ले गया था। तो वो जो है तुम मेरे लिए लाना। कहा जी जरूर। मैं बड़ा परेशान था कि इतना बड़ा ब्रश कहाँ मिलता है, मतलब मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे पता है। मैं 100 दुकानों में गया हूँगा। फिर बब्बा और विलायत खान साहब दोनों लोग को लेकर के गया इधर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। दुकान में जाता था और वो निकालते थे, तो बहुत बड़ा होता था, तो इतना बड़ा होता था, मतलब सबसे बड़ा साइज निकाल रहे हैं, तो भी तभी फेस पे लगाने के लिए कितना बड़ा ब्रश देंगे। तो बब्बा नाराज हो जाते थे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, अरे इतना बड़ा था वो, तुम लोग नहीं दाढ़ी वाली नहीं बनाते हो? मैं कहा तो नहीं बनाता हूँ मैं तो जेल, वही क्या होता है? मैं कहा मैं तो जेल लगा लेता हूँ, उससे हो जाता है। मैं कहा तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। करते 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 मैं हारी मान गया, मुझे वो उतना बड़ा ब्रश ही ना मिले। तो फिर जब सुबह उनके पास मिलने गया तो बोले ठहरो, निकाले बॉक्स खोल रहे, इतना बड़ा सा ब्रश निकाले। बोले देखो तुम इंग्लैंड में रहते हो, तुमको पता ही नहीं कि इतना बड़ा ब्रश यहाँ मिलता है। तो मैंने वो देखा, तो मगर जिन्होंने उनको बुलाया था, जय विश्वदेव जी, उन्होंने भी मुझे बताया कि अरे भैया वो डिस्प्ले आइटम होता है ना, तो उसको थोड़ा मतलब वो डिस्प्ले आइटम में वो थोड़ा बड़ा बना करके, जैसे बोतलों की अक्सर बड़ी बोतल बना करके या किसी चीज का कुछ बड़ा सा बना कर रखते, तो वो उन्होंने लिया और 100 पाउंड का खरीदा, सिर्फ इसलिए कि लाला श्रीधर जी को देना है। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा है, उनको एक ब्रश चाहिए, वही ब्रश चाहिए जो 65 में ले गया था।
अब आप समझिए 65 से तब तक क्या जमाना बदल गया है, मतलब आदमी जेल पे आ गया है। आपको पता है, जेल भी नहीं, लोग तो गाड़ी चलाते हुए दाढ़ी बना रहे हैं इधर मशीन से, काम पे जाते हुए उनका दाढ़ी चल रहा है। औरतें मेकअप कर लेती हैं गाड़ी चलाते हुए। अब कितना जमाना बदल गया है, आप सोचिए। तो उनके साथ की बहुत सारी घटनाएं हैं, और जैसा मैंने बताया ना कि उनके साथ अगर आप 10 मिनट के लिए भी कहीं गए तो आपको पता है कि घटना घटेगी, किसी किस्म की घटना घटेगी। अच्छे बुरे की बात नहीं कह रहा हूं, कुछ न कुछ घटना जरूर ही घटेगी। हम लोग डरते कांपते रहते थे कि मतलब जो उनसे मिलने आ रहा है, अगर वो सही तरीके से नहीं मिलेगा तो उसका क्या होएगा नहीं पता है। पता नहीं रहता था कि कब उनका मिजाज बदल जाएगा, क्योंकि गुस्सा 5 सेकंड में गुस्सा, लेकिन मैंने उनकी आंखें नम देखी। वो जब कहानियां मुझे बताते थे, जब मैं उनको एक बार गिफ्ट देने का कोशिश किया, लेकिन पैसे का गिफ्ट दिया, वो आप समझ लीजिए मैं उनको बहुत प्यार से देता था, चाहे परफ्यूम हो, बॉस परफ्यूम। मतलब मैं कहा कि ये आपके लिए है, इससे बड़ा और अच्छा नाम तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, ये आपके लिए शायद बना हुआ है। या कुछ उनको पहनने का देते थे तो वो बहुत ही पर्टिकुलर थे, किस रंग का है, कैसा है। एक बार पापा जी भी हमारे ऐसे ही थे, इधर पोलो लिखा है, बोले कि मैं पोलो वोलो उनका मैं क्यों प्रचार करूं, मैं उनका प्रचार नहीं करूंगा। अब ऐसा सोचिए, ऐसा कपड़ा लाओ जिसपे कुछ लिखा ना हो, हम उनका एडवर्टाइज नहीं करेंगे। बहुत तो पर्टिकुलर। इस ऐसी एकदम एक ही जैसी बात विलायत खान साहब की जो यादगार में जीरा दीदी कह रही थी कि बोले कि कुछ ब्रांड का चीज वो पसंद नहीं करते थे खान साहब, बोले मैं जो पहनता हूँ वही ब्रांड बनेगा। क्या ये नजरिया दोनों का ही था। यही सही बात है, सही बात है। जब मैं उनको यहाँ रिसीव करने गया, 2 बार आए उस दौरान में, तो उस जमाने में हमारे पास में मोबाइल फोन होता था जो इतना बड़ा था, वो फिलिप्स का डिगा करके था, वो बहुत ही ईंट जैसा वो मोबाइल फोन, बहुत देर चार्ज वार्ज रहता नहीं था। मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया और थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि उनको यहाँ हीथ्रो लैंड हो करके ब्रैडफर्ड जाना था। तो उस बीच में मैंने उनको रिसीव करके सही टर्मिनल में ले जाना था, फिर दोबारा से चेक इन करके आगे की जर्नी उनकी करनी थी। और किसी वजह से उनकी फ्लाइट लेट हुई और मैं इस टर्मिनल में जा रहा हूँ, फिर उस टर्मिनल, अच्छा काफी दूरी है यहाँ पे, वो 2 टर्मिनल के बीच में काफी दूरी है। और मैं बहुत परेशान था कि मतलब बब्बा पहली बार आ रहे हैं बहुत साल बाद, और मैं सबसे जा करके ऑफिशियल्स को बोल रहा हूँ कि प्लीज माय ग्रैंडफादर ही इज वेरी ओल्ड, यू नो, ही इज 74, और 74 नहीं, ज्यादा ही थे एक्चुअली, ही वाज हिटिंग 80 आई थिंक। तो मैं बहुत डरा हुआ था। 2002 में जो 2002 में थे, जी जी जी। वो विलायत खान साहब के साथ जो प्रोग्राम हुआ जी, जिसमें दरबारी कनाडा बजाए। नहीं, एक बार बीच में आए थे जो सोलो के लिए आए थे, और भी अच्छा उसी दौरान में थे। नहीं, उसी दौरान में थे, वो थोड़ा लंबा टिके हुए थे। जी जी जी। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मतलब सबको मैं कैसे बताऊं कि आई डो, उनको मैं ट्रॉली धकेलते हुए तो यहाँ नहीं देख सकता हूँ, हमारे होते हुए तो वो ट्रॉली नहीं धकेलेंगे। तो मैं भाग दौड़ कर रहा था, मैंने सबको बता कर रखा, मतलब सबको पता लग गया एयरपोर्ट पे कि कोई आ रहा है आज, और वो बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करनी है, और बहुत महान कलाकार है। तो आखिर में ये भाग दौड़ करते करते मैं आपको बताऊं 3 घंटा निकल गया। अब मैं हताश होकर के अच्छा अब अभी नहीं मिलेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता नहीं है। फिर वापस से मैं टर्मिनल 3 पे आया तो देखा कि फोन के पास खड़े होकर के कोई ऑफिशियल के साथ में फोन मिला रहे हैं। और आपको सही बताऊं, इस उम्र में, उस उम्र में व्हाइट ट्राउजर्स और ग्रीन रंग का पोलो शर्ट पहने हुए थे, तो जैसे लगते थे कि अभी बस कोई 40-50 साल के ही कोई व्यक्ति हूं। तो जैसे ही मैंने उनको देखा जाके, अरे बाबा, घूम के देखे, बोले बस जो बुलाई थे उनको थोड़ा सा डांट करके, बस मैं अभी वापस जाने वाला था। मतलब वो अभी इंडिया वापस जाने वाले थे, गुस्से में थे।
लेकिन मुझे देख करके बड़ा खुश, उनके जान में जान है कि अरे चलो ये आ गया है। तो जो ऑफिसर था वो मुझे कहता है, यू सेड ही वाज समबडी ओल्ड। मैं कहा, अरे भाई ये हमारे दादाजी हैं एंड ही इज नियरली 80, ही डजंट लुक इट। तो उनसे फिर पूछने लगा कि आप क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं। मैंने बोला तबला बजाते हैं, इसलिए इतने फिट रहते हैं, और बहुत कुछ करते हैं, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बाद में जानना है इसको। तो बब्बा का पहला शब्द था कि चलो तुम आ गए, जान में जान आ गई, अच्छा मेरा फ्लाइट कैंसिल करो, जो आने वाले, जो बाहर और आगे जर्नी है। तो मैं बड़ा घबराया, मैं कहा, अरे बब्बा अब मतलब गलती हो गई, उनकी गलती नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ हो गया समझो। बोले नहीं नहीं, मुझे पता चला कि तुम भी जाओगे ना मेरे साथ। मैं कहा जी जी, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में जाऊंगा। अब मेरा तो हालत खराब, 5 घंटे का ड्राइव है, 6 घंटे का ड्राइव है, और बब्बा को साथ में लेके जाना, मतलब मैं तो डर के मारे मेरी हालत खराब। खैर मैंने कहा चलिए अभी घर ले चलते हैं। मेरे गाड़ी में बैठे, और इतनी महान कलाकार बब्बा तो थे ही, लेकिन उनसे सब लोग इतना डरता था, और इतनी करीब हम लोग बैठते उठते नहीं थे उनके साथ। तो मेरे गाड़ी में जैसे बैठे तो मेरा हाथ लग गया, मेरा वाइपर चल उठा, तो वहां डांट मुझे पड़ी, यही सब है तुम लोगों का, तुम यंग लोग बिना पानी डाले देखो वाइपर चला दिए, स्क्रैच पड़ जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं बब्बा, वो गलती से हाथ लग गया। अच्छा ठीक, मैं कांपते हुए अपना गाड़ी चला रहा हूँ। फिर बैठे बैठे कब से चला रहे हो? उनका बब्बा अभी सिर्फ 4-5 साल ही हुआ है। इतने देर से देख रहा हूँ गलत गियर में गाड़ी चला रहे हो। मैं कहा जी ऐसा नहीं, वो तो, मैं कहा नहीं बब्बा वो ऑटोमेटिक है। बोले इतने देर से देख रहा हूँ कभी गियर ही नहीं बदले। मैं कहा नहीं नहीं बब्बा ये ऑटोमेटिक है। बोले ये क्या होता है? अब मैं उनको मतलब समझा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी क्या है, कि उसमें कुछ बदलने का नहीं है, ये खुद ही। अब वो इतना इंटरेस्टेड हो गए कि मैं सारी बातें उनको बता रहा हूँ कि होंडा अकॉर्ड में क्या होता है, और मैं ऑन कर रहा हूँ तो मेरा एरियल निकल जा रहा है, मेरी सीट इलेक्ट्रिक है, ये वो बड़ा मतलब बहुत। बोले अरे क्या बात है, तो ये तो फर्स्ट क्लास है। मेरे घर पे आए, और जाहिर है कि हम उनके लिए अच्छे से अच्छा बिस्तरा सब कुछ तैयार किया। बोले नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे सोफे पे सोऊंगा। अब बताइए आपने कभी ऐसा सोचा होएगा, सुना होएगा? जिस महान आत्मा के लिए 5 स्टार होटल में मैं उनके साथ रह चुका हूं, वहां भी वो कुछ ना कुछ उनको हो जाता था कि ये नहीं ठीक है, ये तकिया नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, इसको हटवाओ, गुलदस्ता यहां से हटाओ, इसको उधर रखो। मतलब वो सारा रीअरेंज होता था जब हम लोग उनके साथ होते थे। ये टेबल देखो, सब बेवकूफ है, गलत जगह टेबल रखा, उसको उठाओ उधर रखो, ये सब करते थे। वो हमारे घर पे, हमारे सोफे पे, वो सोफे पे रहे, आपको बता नहीं सकता हूं। तो ये जो उनका जो साइड था, ये दूसरे लोग नहीं देख पाए। बहुत सारे लोग जो उनके करीब थे बस वही देख पाए ना। आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे सो सकता हूँ अपने घर में, जब हमारे दादा जो हैं हमारे सोफे पे कैसे सोएंगे। हालांकि कंफर्टेबल था, मतलब बड़ा सोफा था, फिर भी उनकी बहुत सेवा की, और बहुत साल सेवा नहीं की, लेकिन जब उनके साथ था ना तो हमेशा नतमस्तक रहा, क्योंकि उनसे 24 घंटे सिर्फ सीखने को मिला। और तबला ही नहीं, जैसा मैं कह रहा था, जीवन में मतलब इतना करीबी मैं अपने पापा जी से भी नहीं रहा, और बब्बा से नजर तो नहीं मिलाता था, लेकिन बब्बा से वो मुझे जैसे दोस्त जैसा ट्रीट करते थे। हमारी गलतियों को भी वो मतलब इतने प्यार से समझाते थे, और क्या क्या मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे कि हम शर्म से सिर्फ सिर झुकाए बैठे रहते थे उनके सामने। तो मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो देखने वाले के ऊपर होता है। आप किस नजरिया से किसको देखते हैं, आप वही देख पाते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको अपनी नजर बदलनी पड़ती है किसी के सामने। अब आप देखिए हमारे सृष्टि में शंकर भगवान को कहते हैं कि अरे बड़े गुस्से वाले थे, मतलब उनका भी ऐसा ही मन मिजाज था। विष्णु जी अपना आराम से पड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी का कोई बात नहीं है जी, जैसा चल रहा है हमने सब कर लिया है, संभाल लिया है। लेकिन आप देखिए ये कैसे कैसे किस्से कहानियां हैं शंकर भगवान का। गुस्से में है तो गुस्से में है, नहीं तो अपना भांग खा के मस्त है।
गाइए बजाइए नाचिए, वो तो आनंद में है। आइए बनारस, तो आपको वहां पे हम ठंडे पिलाते हैं, फिर देखिए आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो चाचा जी थोड़ा आगे का बताइए कि आप जब अ, काफी साल बाहर रहे, आप फिजी में थे शायद, गयाना में थे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आप म्यूट पे उनको हैं। अनम्यूट करना होगा। जी जी हाँ हमारी आवाज नहीं हाँ हाँ, अभी आ रही है। आ रही। ब्रिटिश गयाना। जी उस दौरान में आपका काफी साल आप बाहर रहे। मैं 8 जी पापा पिताजी हमारे इतने ज्यादा स्वाभिमानी थे कि अगर उनके स्वाभिमान से कोई टकरा गया वो जीत नहीं सकता। हम्म। बाई चांस मैं भी टकरा गया था, मैं भी जीता नहीं, मैं हारा। लेकिन वो अपना सबसे ऊपर रखते थे। पापा का स्वभाव था कि अपने को ऊपर रखते थे, सबसे ऊपर। वही उनकी शिक्षा थी। बोले बेटा किसी के साथ संगत बजाओ, किसी के साथ बैठो, ये समझ के मत बैठो कि हमसे बहुत बड़ा है, हमसे बहुत सीनियर है। ये समझ के बैठो कि ये हमारे बराबरी का है। क्या क्या सोच था। बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाए और उनका सोच, उनका कॉन्फिडेंस। बोले आत्मविश्वास कलाकारों में होना बहुत जरूरी है, विशेष करके संगतकारों के लिए। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए। ये सब उनकी शिक्षा थी। जिद्दी इतने थे, स्वाभिमानी इतने थे कि एक बार आराम कर रहे थे, 6 बजे करीब उठना था उनको, 5 बजे कोई आ गया उनसे मिलने के लिए। बोले कि मैं आया हूं। जाके उठाया गया उनको। बोले कह दो कि 1 घंटे बाद आवे। बोले आप उनसे कह दीजिए महाराज जी के लिए मैं दक्षिणा लेके आया हूं। तो हम लोग तो मतलब कि अगर सोते रहे, कोई कह दे कि दक्षिणा लेके आए हैं, तो एक बार की उठ जाएंगे। पापा ने कहा जाके कह दो अपना दक्षिणा अपने पास रखे, दक्षिणा का लालच हमको न दे। तो जो दक्षिणा चढ़ाना है बड़का बाबू या मेरे फोटो पर चढ़ा दे, और हमसे मिलना है तो 1 घंटे बाद कम से कम आवे। शाम को हम बैठते हैं, शाम को आके भेंट करें। उनसे बोल दिए, वो अपना दक्षिणा चढ़ा के चले गए। पापा के अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत किस्से हैं। चाहे उनका प्यार हो, चाहे उनका स्वाभिमान हो, मतलब हम लोगों ने उसको फील किया है। रह गया संजू बाबू का सवाल। संजू बाबू का ऐसा स्वभाव है, इनको सभी प्यार करते हैं। कि जो पापा के लिए बतला रहे थे, हम तो पापा के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण है। हम ऐसे कोई महान हम नहीं है। लेकिन संजू हमारे साथ भी वैसे ही डील करते हैं। कितनी बड़ी बात है। संजू से मिलते हैं तो ये सब पुराने लोगों की जो शिक्षा है वो संजू सहाय ने ग्रहण किया है। इसीलिए ये सबके प्रिय। हम लोगों से हम बोलेंगे, संजू खाली हाँ में हाँ मिलाएंगे। अरे अरे कुछ बोलो, आपके आगे हम क्या बोले। हम मिल के अगर गले गले मिलना चाहते हैं, नहीं चाचा जी बस ठीक है, बस प्रणाम। कि पापा के लिए इतना किए, हमारे जैसे कलाकार के लिए और
छोटे चाचा जी के लिए ये इतना, वो तो दादाजी थे, उनके लिए तो ज्यादा था। जब मैं भैया के यहाँ जाता था, शारदा भैया के घर पर, मैं अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता हूँ। संजू हमेशा तबले पर बैठे रहते थे। कुछ सामान लाना हुआ, कभी हमको खरीदारी करानी हुई, कभी घुमाना हुआ, तो अपना टाइम निकाले, हमेशा तबले पर, हमेशा तबले पर। थोड़ा बहुत फोन मित्रों का आया, बात कर लिए, फिर तबले पर, खाना खाए तबले पर। पापा लोगों ने, बब्बा लोगों ने इश्क किया था अपने तबले से, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को हमारे ऐसे टैलेंटेड विद्वान बच्चे फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग भी फॉलो किए हैं, लेकिन ये लोग बहुत बहुत टैलेंटेड है। और बप्पा ने पापा को कैसे ट्रेनिंग दिया, ये मैं कई लोगों को इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ। पापा बतलाते थे कि सवेरे सवेरे वो उठा, उन्हीं अपने कमरे में सुलाते थे पापा को, और सवेरे 4-5 बजे उनको उठा देते थे। पापा बोलते थे रजाई खींच लेते थे। बड़का बाबू को थोड़ा सा भी उस समय प्यार नहीं आता था, रजाई खींच के बैठा देते थे। बैठा के कहते थे कि हम गा रहे हैं, तुम संगत करो, तबला ले लो हमारा, तुम संगत करो हमारे साथ, हमारे गाने पर। और वो गाते थे, धमार गाते थे, और उसमें लड़ंत भिड़ंत करवाते थे, डांस का टुकड़ा बोलते थे। सालों ऐसे प्रैक्टिस करवाए हैं, गत सितार सरोद का मुंह से हमारे दादाजी वो करके, मुंह से बोल के, और उस पर पापा को लड़वा रहे हैं। तो इन लोगों का ट्रेनिंग ऐसा हुआ है। और मतलब उनकी बातें याद करेंगे, कोई प्रश्न करने वाला हो तो और ज्यादा बात याद आएगी। संजीव लाल को अगर कोई प्रश्न पूछना हो, या आपको, या अम्मी जी, या राम भाई आपको, तो आप पूछेंगे तो और ज्यादा, क्योंकि हम तो 24 घंटे जुड़े थे, हमेशा उनको देखे हैं, उनसे कन्नी कटाते थे, कहीं सामना न पड़ जाए शेरे हिंद का, नहीं तो पता नहीं क्या क्या। गुदई चाचा जैसा महान तबला वादक क्या कहता था उनके लिए पंडित शांता प्रसाद जी, कहते थे यार किशन प्रसाद, तुम बाली हो, बाली, सुग्रीव के बड़े भाई बाली, तुम बाली हो, जिसके सामने तुम बैठ जाओगे, जिससे युद्ध करोगे, उसकी आधी शक्ति तुम ले लोगे। कहते थे नहीं मामा, ये आपका प्यार है और ये आप में भी गुण है। कहे नहीं, तुम तो बाली हो, साक्षात तबले के बाली हो, तुम आधी शक्ति छीन लेते हो सामने वाले की। कहे मामा ऐसा है, आप जब बजाइए तो हम नहीं बैठेंगे, हम जब बजावें तो आप भी मत बैठाइए, आप भी मत बैठिए। हम लोग बनारस के नाम पर बनारस घराना प्रेजेंट करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को सामने बैठ के, जरूरी नहीं है देखना। तो ऐसे वो लोग थे जिसको, ऐसे महान लोग जिसको पापा का तबला कितना विलंबित, जो संजू ने कहा है, बहुत बढ़िया स्टडी किया है संजू ने। और बड़ा हंसी आता है हमको कि हमारे में तो हमको कुछ गुण दिखता नहीं, हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से दिख जाता है। संजू ने जो पापा के लिए कहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक करते हैं। कि कितनी बड़ी बात है कि पापा लोगों का ये देखे हैं, अपने घर में देखे हैं, भैया लोगों का देखे हैं, अपने बड़ों के प्रति क्या प्यार, क्या रिस्पेक्ट,
क्या आदर राजन साजन जी का भी वैसे ही संजू इज्जत करते हैं, कुमार बोस जी का भी वैसे ही करते हैं, जाकिर हुसैन जी का भी वैसे ही करते हैं। और हम लोग तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, काफी कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। जिंदगी चाहे कितने दूर अमेरिका चले जाए, चिली चले जाए, हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों के पिता, हम लोगों के गुरु, उनकी ट्रेनिंग है। शारदा भैया अंत तक जुड़े हुए थे अपने गुरु से, अपने घर से। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे रामशंकर भैया संजू लाल के पिताजी बहुत कम एज में चले गए, लेकिन खैर संजू को बढ़ना था और संजू बढ़े, पापा के साथ बढ़े, शारदा भैया के साथ बढ़े। और हम लोगों ने तो कुछ खास सिखलाया नहीं, लेकिन संजू हमेशा महत्व देते हैं। तो ये खासियत है संजू की। ये सब खासियत इन लोगों ने अपने बड़ों से, पापा के साथ संजू का इतना पटता था। अच्छा, संजू को कोई नहीं डांटता, पापा ही नहीं, हम लोग तो पापा। एक बार अल्लाह रखा चाचा का एक बज रहा था, वो एलपी रिकॉर्ड सोलो पापा लाए थे बड़े शौक से कि मैं ले आया हूं, उनका सोलो अल्लाह रखा खां साहब का। अब बजा रहे थे और वो बहुत बढ़िया उपज करके आते थे। तक दिन तदिन ता अतक दिन तक, मैं गिन रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पर गलत हो गया। ये मैं बॉम्बे स्टेज पर जाकिर भाई को बोला था, जब मैं, अभी तो संजू बहुत नाम करके आए अब्बा फेस्टिवल में, सुन भी गए हैं। पापा थोड़ा मूड अपने मूड में थे और इतनी प्यारी प्यारी गालियां दी हमको बनारसी। संजू लाल का जो एरिया है, खाटी कबीर चौरा, खाटी हम लोग का थोड़ा आउटर है। वो पूरा यादव कुल उसी गली में रहता है। उस गली के बीच में पंडित राम साहब भवन है। यहाँ पंडित भैरव साहब जी, पंडित बलदेव साहब जैसे दिग्गज, जानकी साहब जी, भगवती साहब जी, नन्नू साहब, सब बड़े बड़े। तो इतनी प्यारी प्यारी गालियां दी हैं जो मैं अभी देने लायक स्थिति में नहीं हूं। मैं इतनी, साले तुम्हारी औकात है, तुम उसका रुआ छू सकते हो, उनका एक रुआ छू सकते हो, तुम उनकी कमी देख रहे हो। बेटा बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। जिसको अदब नहीं है वो बेनसीब होता है, जिसको अदब है वो नसीबदार होता है। तुम अपनी औकात नहीं देखे, तुम अल्लाह रखा खा की बुराई देख रहे हो। तो ये हम लोगों को शिक्षा मिली है, हमेशा बड़ों का इज्जत करना, बड़ों से आशीर्वाद लेना। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। और संजू साहब ने बहुत बुलवा दिया हमको। संजू कुछ अपना और साझा करें, बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। इतना सुंदर सुंदर पापा का रूप भैया पीछे है, बीच में बड़ा गदगद हुआ था। जी मैं बीच में एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये महाराज जी के लिए बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली महाराज जी आपको यहाँ पे लाने के लिए, सही में मैं कह रही हूँ, मेरे में इतना हिम्मत नहीं था। संजू भैया से बात किए थे राम प्रपन्न, और संजू भैया ने डायरेक्टली बोले थे कि पूरन महाराज जी को बोला जाए। तो राम प्रपन्न हमको फोन करके बोले कि उनसे बात करनी है। हम बोले कि ठीक है, मुझे एक दिन तो टाइम दो, हम बात करते हैं उनसे। सच में कह रही हूँ, मैं घर में आई, हाथ पैर पूरा ठंडा होके हम फोन कर रहे हैं। हमको तो पता था कि 3-4 साल बाद मैं फोन कर रही हूँ। सही में 5 घंटे का जर्नी का डिफरेंस है, नहीं तो अगर बगल में रहते तो हाथ पड़ता पीठ पे ही एकदम अच्छे तरीके से। इतने 4 साल बाद याद आए। तो
ये है कि पहली तो बात ये कि आइडिया तो उन्हीं का ही था, बट हम लोग हिम्मत जुटाए क्योंकि भैया थे हम लोगों के साथ, तो इसीलिए हम अरे लोग नहीं, हिम्मत जुटा ऐसी के कोई आपको बात कॉल नहीं कर है। दिए। नहीं नहीं चाचा जी, और बहुत मैं बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इधर हैं, लेकिन बहुत आपका भी सबके साथ बहुत प्रेम व्यवहार है, और अरे मतलब सच में, कोई ऐसा नहीं है आपका जिसके साथ इनका प्रेम व्यवहार नहीं है, कोई ऐसा एब्सोल्युटली नहीं। सही बात। तो ये नहीं बहुत, देखिए भैया, इनका मैं दिल एक बहुत चीज बड़ा कहना चाहती हूँ इसमें, आप लोग एक घर से हैं, एक घराने से हैं, एक जगह से हैं। हम लोगों का तो सही में कोई जगह ही नहीं है, अभी तक शुरू किए हैं, पैर रखने का कोशिश कर रहे हैं, अरे वाह, रामप्रपुर में भी थोड़ा सा स्ट्रिंग्स चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा फिर नहीं। भी उन्होंने जिस तरह से आप लोग, अरविंद भैया, अक्रम जी, राम कुमार जी, सुरेश तलवारकर जी, सब कोई इस एक छोटी सी कोशिश हम लोग शुरू करते, सिर्फ महाराज जी को याद करके, हम भी उनको बहुत कम ही देखे हैं, बट फिर भी मतलब आप लोग एक ही साथ में एक ही बार में हाँ बोल दिए, ये सही में मतलब आप लोगों को अगर सामने रहते तो सही में बड़ापन है। सबका पैर जब तक नहीं छुएंगे तब तक सही में ये चीज नहीं कंप्लीट हो मैं पाएगा। यही कहना चाहूंगा और राम भाई के लिए। तो राम भाई ने जब मुझे ये ऐसा बोला, ऐसा पूछा मुझे कि आप उनके बारे में बोलिएगा, मैं कहा मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े महान अरे वाह, कलाकार के लिए कुछ भी कह सकता हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ। हम अपनी पर्सनल जो उनके सेवा भाव से जो उनसे सीखा है वो सब शेयर कर सकता हूँ। उनकी कला के बारे में तो मतलब वो महान शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है। बहुत तो मैं छोटा होता है, सही। उनके लिए मैं बात करने योग्य नहीं हूँ। मैं बहुत 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 छोटा हूँ, उनका पोता ही नहीं हूँ, मतलब और 20 सोच लीजिए जनरेशन नीचे हूँ। उनके उनके लिए बात करने का मेरा औकात नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि देखिए, अगर मेरी पर्सनल जो जर्नी उनके साथ रही है उसके विषय में मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ये थोड़ा सा ऐसा अनुमान सब लोग का है उनकी तस्वीर को देख करके या उनके चर्चाएं सुन करके, गुस्से वाले तो थे, लेकिन हर वक्त थोड़ी गुस्सा करते थे। वो गलत सही बात बात, पे गुस्सा करते थे। हर वक्त थोड़ी, जैसे कि आप मिलने जा रहे हैं तो गुस्सा करते थे। बहुत प्यार से आशीर्वाद देते थे सभी को, सभी को। ऐसा नहीं था पात्र के कि ऊपर, वो पात्र के ऊपर डिपेंड करता है, कौन गया, कैसे मिला, वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और आपने उनको एक गिलास पानी दिया और गिलास एकदम ऊपर तक भर के दिया, बस हो गया, वहीं से शुरू हो जाएगा। ओ हो, क्या बात है, सही बात, सही बात। तो ये सब सीखने वाली बात है। आप कैसे अपने बुजुर्गों के साथ हैं, हम लोग उनको कब दे रहे हैं तो एक हाथ इधर लगा करके, ये अदब की बात है। हम उनसे कभी नजर मिला के बात नहीं करते। पापा जी से भी अपने बात करते थे तो आधी बात करते थे, आधी बात अंदर ही रहती थी। ये ऐसा ही सीखा है। तो बड़े बुजुर्ग की ये सब बातें समझते थे कि अभी बोले नहीं आता, फिर बैठ गए उनके बगल में, उनका तो मूड खराब हो ही गई। हम लोग को 100 बार कहते थे बैठ जाओ, 8-8 घंटे खड़े रहते थे, फिर भी बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, जी 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 करके फिर भी खड़े। तो यही सीखना था। आप एक और टुकड़ा सीख लेंगे, लेकिन उस टुकड़े में वो भावना लाएंगे कहाँ से? जब आपके अंदर ही वो भक्ति भाव नहीं है तो आपका टुकड़ा तो आप, सब लोग तो टेप से सुन के तो सारे लोग बजा रहे हैं, वो तिरकित में आपके वो आत्मा कहाँ से आएगी? ये तो जब आप सेवा करेंगे तभी आएगी। बब्बा हम लोगों को एलपी बजा करके विलायत खान साहब का साजगिरी, विलायत खान साहब का एक गजब गजब चीज सुनाते सिखाने के लिए कि सुनो, देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग सुनाते थे, कैसी कैसी चर्चाएं, और डिटेल में। मैंने कहा ना कि आज तक मैंने उनको जल्दबाजी का कुछ भी करते नहीं देखा। सही बात, कभी सही बात, एकदम मिजाज से सब कुछ आराम से बैठा करके, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा है। मतलब हम बात कर रहे थे कि हमने सब उन्हीं से तो सीखा ना, कैसे इज्जत करते हैं, कैसे अदब करते हैं।
वो भी मेरे साथ ऐसे थे कि कभी कहते थे कि देखो तुम उसका पाँव मत छूना। अब किसी बड़े के लिए कह दें कि उसका पाँव मत छूना। अब मैं बड़ा डर जाता था, मैं ये सोचता था कि कैसे नहीं छूऊँ मैं? मतलब आपका संबंध उनके साथ जो है वो तो दूसरा है, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं तो छोटा हूँ ना, तो मैं चोरी से पाँव छूता था। उनको बचा करके धीरे से पाँव छूता था कि मतलब अपनी भी बात हो जाए, उनकी भी बात हो जाए, ताकि उनको, अब उनकी बात कैसे टाल सकते थे? जी, 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 जी करता था। फिर उनको मैं धीरे से जाकर के पाँव छू लेता था, क्योंकि अपने से होता नहीं। हमने वो एक सबसे बड़ी चीज जो हम देखे हैं कि चाहे वो रात को 2 बजे हो, चाहे रात को 3 बजे हो, अगर कोई भी प्रोग्राम के लिए, कोई समारोह के लिए अगर बुला लिए हैं, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक जी, महाराज जी बैठे रहते थे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई हैसियत ही नहीं है हम लोगों का कि मैं उनके सामने कुछ करके दिखाऊं, फिर भी वो बैठे रहते थे। एकदम दूसरा दिन फोन करके बोलते थे कि यामिनी इस चीज को चेंज करो, इसको हुँ, सही कर लो, जरूरत पड़े तो इसको इतना रियाज करो। ये सारी जो चीजें ना हम उनसे सीखते थे ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं, मैं तो उनके डायरेक्ट तो स्टूडेंट हूं नहीं, बट सिर्फ उतना वो ये किए थे कि हाँ सम्मान के तौर पे, मतलब मैं जो उनको सम्मान देती थी वो चीज भी उनके इसमें है। और एक चीज और भी है कि इतना परफेक्शनिस्ट हर चीज के लिए महाराज जी को हम देखे, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट, और एक बिल्कुल सही चाइल्डिश बात, बिल्कुल बात सही जो बात। उनके दिल में है। एक मोबाइल वो दिखाए थे राम प्रभु ने, ये आप भी सुन लीजिए। एक मोबाइल उनको गिफ्ट मिला था, रशीद जी ने दिए थे, तो कोलकाता में ही उनके घर में उनको बुलाए थे महाराज जी को, फिर एक मोबाइल दिए थे। दूसरा दिन हम गए थे तो कह रहे कि ये देखो मोबाइल पहले देख लो, बहुत महंगा है, बाहर से लाया है वो। अच्छा, मतलब वो चीज भी है कि मतलब उनके पास एक नया मोबाइल आ गया है, मतलब इतना हर वो चीज़ के लिए। स्वीटनेस, एक और वो इनोसेंस जो है वो देख। म्यूजिक में आता है, जो इनोसेंस है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। पोलो स्वीट खाते थे। वो पोलो है ना, हाँ उसमें जी। थोड़ी-सी हर पोलो टाइम। स्वीट खाते थे। बोलो। और थोड़ा जब मूड वगैरह बनाते थे, थोड़ा-सा उनका आनंद के लिए सिर्फ़ 2 पैग चाहिए था उनको। अब यहाँ पे नमकीन कुछ मिल नहीं रहा है, तो बोले कि चिप्स लेके आओ मैकडॉनल्ड्स से। तो मैं चिप्स लेके आया। मतलब वो पोटैटो आप क्या कहते हैं? फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच हाँ, फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज़ थे। एब्सोल्युटली। तो फिर जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो बोले कि मेरे लिए बर्गर लाओ, लेकिन उसमें घास-फूस मत डालना। उसको बता देना कि मेरे लिए है, उसपे घास वगैरह मत डालना। मैं कहा जी, जी, जी। गए, फास्ट फूड जगह है, वहाँ तो खट-खट-खट सब काम हो रहा है, वहाँ तो कह नहीं सकते हैं कि ये बुब्बा का है कि महाराज जी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ जस्ट डोंट पुट एनी लेसेस। तो उसने सब हटा दी, लेकिन थोड़ा बच गया था। तो मैं ला के दिया, पहले उसको खोल के देखें। बताया नहीं उसको कि मेरे लिए है। मैं कहा जी, जी, जी बताया। मतलब उनको यहाँ रोड क्रॉस कर रहे थे, खान साहब के साथ में, तो एक मोटर बाइक अभी, मतलब लाइटें अभी भी रेड से एम्बर, फिर मतलब ग्रीन से एम्बर फिर रेड हो रही थी। बब्बा चल पड़े और वो ऐसे चलते थे, ऐसे पीछे हाथ रख के। तो जब से मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ तब से वो चल पड़े, और तो एक बाइक वाला उनको एकदम धक्का देते हुए बचा। तो कुछ कहता हुआ निकल गया, मैंने उसको हाथ जोड़ दिया, "छोड़ो भाई।" तो बोले, "क्या कह रहा है? क्या कह रहा है?" मैं कहा, "अरे कुछ नहीं कह रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है।" मतलब ये लंदन है, आप समझ सकते हैं कि उनका जो मिजाज था ना, वो हर जगह में वो राजा जैसे रहे। उनका जो राजसी मिजाज था, वो हर जगह वैसे ही रहे। उनके साथ ट्रेन में कभी सफ़र किया होता आपने तो आप समझ सकते थे। अरे बाप रे! क्या-क्या मैंने सब क्या बताएँ। अहमदाबाद गए, तो पहले दिल्ली रुकते हुए गए, और ट्रेनें सब देर आ रही थी। जनवरी का महीना एंड ऑफ दिसंबर था, सब तक जा रहे थे। तो पूड़ी सब्जी जो घर से बन के आया था, 2 बार खा लिए, खत्म। अब कह रहे हैं कि मेरे लिए भी खाना ऑर्डर करो। अब आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि सभी को खाना मिला, सिर्फ बब्बा को और मुझे खाना नहीं मिला। और उसके पहले बब्बा सारे कंपार्टमेंट में, मेरा पोता है लंदन से आया है, अब 90 की बात बता रहा हूँ, 30 साल हो गया।
30 साल पहले, तो मैं भी यंग था उस तो बोले देखो खाने का देखो, तो मैं घड़ी-घड़ी उससे पूछ रहा था खाने वाले को। तो उस आखिर में उसने कह दिया देखो भैया खाना हो गया है खत्म, और अब बोलो तो मैं सब इधर-उधर करके मिला के दे देता हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अरे डोंट डू दिस, क्योंकि वो जो बचा-खुचा रहता है वही डाल के दे देगा। तो मैं डर के मारे आके बैठ गया। मैं कहा कि थोड़ा देर में देखता हूँ बाबा। उसके पहले बाबा बहुत बात मेरा पोता है लंदन से आया, सब अरे महाराज जी कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा बहुत मतलब एकदम दूसरा पर्सनालिटी। तो बोले कि तुमसे कुछ नहीं होएगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं कहा ऐसा है बाबा कि खाना खत्म हो गया है और मुझे भूख लगी नहीं है। बोले तुमको न लगी हो, मुझे तो लगी है। तो बोले अटैची दो। अब मुझे पता था कि अटैची में रिवॉल्वर है और उनका डायमंड बटन जिसको मैं सिर के नीचे रख के सोना था, वह मेरी जिम्मेदारी थी। तो बोले अटैची दो। तो मैंने सोचा पता ये खाना नहीं मिला है, उसके लिए वो गोली मारने को तैयार है। मैं उनका पाँव पकड़ा। मैं कहा कि मैं अभी अगले स्टेशन को उतर के जो कहिए मतलब सब आप रहने दीजिए। मतलब जितने लोग थे ना मतलब वो खाली हो गया, एरिया पूरा खाली हो गया। उनका मिजाज तब तक ठीक है जब तक कि कुछ खराब नहीं हो जाता। अगर किसी ने गलती की तब तो फिर आप बीच में आप कुछ कह भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते। चाहे वो कूली के साथ बात हो, चाहे वो उनके लिए अगर लस्सी कोई बना रहा हो, पान बना रहा हो, उनके मिजाज से होना है बस। अगर उसके कुछ गड़बड़ होगा तो फिर उनका मिजाज खराब होगा। खैर उनके साथ की घटनाएं चाचा जी बताएंगे आपको। सब तक में जो उनका उठने बैठने का था, परिवार है उनका, हमारी नंदन काका और नंदन काका के जितने भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, एक ही परिवार है। मतलब वहाँ जा कर के भी हम सभी को यही लगता है कि हम अपने घर ही चले गए। तो बब्बा वहाँ जाते थे और उनका जो बैठने का अंदाज था कि 3000 लोग बब्बा के पीछे बैठते थे, लेकिन बब्बा का बैठने का वो आधा थोड़ा लेट करके बैठते थे और एक टांग ऐसे रहता था। और अब आपको सही बताएं कि इतना हम लोग मिस करते हैं कि जितने भी लोग स्टेज पे आते थे गाना बजाना क्या होता था, क्योंकि सबको अपने होशो हवास में रहना पड़ता था। तो ये बड़ी कृपा थी कि हमेशा किसी बड़े बुजुर्ग का होना, आज उनका ना होना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। पूरे संगीत जगत के लिए उनका नहीं होना ये कितना खलता है। इतना उनके रहने से सबको पता था कि एक डर है, एक सही तरीके से काम करना है। हमने बनारस में बजाया जब पंडित मणिलाल नाग जी बेटी के साथ आए थे उनको पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो बब्बा का आइडिया था कि एक तरफ कुमार भाई बैठेंगे, एक तरफ संजू बजाएगा, पंडित कुमार घोष जी। तो मैं तो ऐसे ही 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो डरा हुआ, मैं कुमार भैया के साथ में अरे बाप रे क्यों मुझे आप मरवा रहे हैं। नहीं, एक तरफ तुम बजाओगे, एक तरफ वो बजाएगा। अब ऐसा हुआ कि बनारस में भी बहुत महान आत्माएं हैं। वहाँ उन्होंने दादा को बताया, अपने पंडित मणिलाल नाथ जी को बताया कि वो सब इतना तबला बजाएंगे कि आपका सितार तो आप बजा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डुएट बजाने लगेंगे। तो वो बोले कि देखो भैया ऐसा है कि एक तबला बजे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराने लाया हूँ। तो मैं तो पहले ही ये तो इंतजार में था मैं, तो मैंने पहले ही कि मैं नहीं बजाऊंगा। अगर हमारे चाचा समान कुमार बोस जी, पंडित कुमार बोस जी जो हिंदुस्तान के नंबर 1 तबला वादकों में से हैं, वही बजाएंगे तो मैं तो अपनी सोचा कि चलो जान बचेगी, चलो ठीक है। और बब्बा एकदम पीछे बैठे हुए थे शंकर मोचन संगीत समारोह में छत पे। तो मैं गया उनको ये मतलब खुश होकर के ये समाचार बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे नहीं बजवाएं तो ठीक है, ठहरो करके जो उठे हैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा चाल नहीं देखा है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं समझ गया था कि आज कुछ हो सकता है, हो सकता। हाँ, तो उस बात का मुझे डर था क्योंकि उसका विषय तो मैं ही था ना।
तो मैं मना रहा था कि मतलब कि कुछ ना हो तो ठीक है, क्योंकि आजीवन में मेरे लिए ये बड़ी दुखद समाचार हो जाएगी। लेकिन मतलब बहुत आराम से सब कुछ हुआ और प्रोग्राम हुआ। वो बैठे हमसे 1 मीटर दूरी पे, हाँ जी अब तुम बजाओ, वो बजाए, अच्छा रुको, अच्छा अब तुम बजाओ, मतलब उनके डायरेक्शन में सारा मतलब प्रोग्राम इतना अच्छा उन्होंने करवा दिया, मैं क्या बताऊं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हर एक क्या कहते हैं, हर एक सभा में एक बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत तो सही। हमारे संगीत के जीवन में, हमारे संगीत के क्षेत्र में, हमारे सारे संगीतज्ञों के लिए उनका ना होना अभी इतना खलता है, मैं बता नहीं सकता। तो आज महाराज जी के ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन अगर कंटिन्यूअसली आप शेयर करें तो भी वो कम पड़ेगी। तो वो भी ऐसे कुछ पर्सन नहीं है। एकदम एकदम। और लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ जुड़े हुए ऐसे ऐसे महान और कलाकार हैं, अकरम भैया हैं, अरविंद भैया हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, उनका जो क्या कहता है समय उनके साथ गुजरा है। अब हम अपने घरेलू बातें ही बता सकते हैं, क्योंकि उसके ज्यादा हमने उनको कभी और किसी नजरिया से दिखा नहीं। वो हमारे लिए भगवान स्वरूप ही थे। कैसे वो लगते थे, कैसे बोलते थे, कैसे बजाते थे, कैसे वो सब कुछ करते थे, यही सीखा हमने। ये नहीं उनको दूसरे नजरिया से हम ऑडियंस बन करके कभी उनको नहीं समझे। वो हमारे लिए हमेशा एक देवता ही थे। तो हम उसी मिजाज से आपको बता सकते हैं। बहुत हाँ बहुत जी। अच्छा लगा और इंसाइटफुल, वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंसाइट्स। थैंक यू सो मच। तो आज खत्म करने के आज भी पहले देख रहे हैं, महाराज जी के बगल में से ही भी देख रहे हैं, देखिए हम सबको देख रहे हैं। चाचा और जी के जिस साथ तरह से बाबा उनका पूरा, एब्सोल्युटली, जिस तरह से उनका फोटो भी रखा गया है, सही में। एंड सीरियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगी राम प्रपन्नो। First of all, this total initiative of ICMC has been taken by Ram Prapunno. And when he told me that he have already is trying to introduce a page और सितंबर से शुरू करना होगा, तो वो करना चाहते हैं सितंबर से, तो आई proposed that on why not on 3rd September, क्योंकि सितंबर मतलब मेरे हिसाब से महाराज जी ऑलवेज। तो फिर राम प्रपन्नो डिसाइडेड कि ठीक है, तो 3rd September ऑल्सो, एंड व्हाई नॉट ऑन 28 अगस्त, just to celebrate the two legends at its rest, the birthdays of the two legends. हमारे हमारे लिए गणेश पूजा के जैसा बराबर है, जैसे सबसे पहले Absolutely. तो and for that reason, भैया, संजू भैया स्पेशली, मतलब for this interactive session, and really thankful to you कि आप हाँ बोल के फिर आपने बताया कि हाँ महाराज जी को लेकर आ सकते हैं। और यही जो आप करेज दिए, नहीं ये जो करेज आप दिए ये तो एब्सोल्युटली, बट हम लोगों को थोड़ा सा बोलने में डर था, क्योंकि वो काफी बिजी हैं और हर चीज को लेके मतलब उनको डिस्टर्ब करना मतलब सही में। तो फिर भी मतलब आप उतना हम लोगों के अंदर में वो हिम्मत जुटाए, एंड फॉर दैट रीजन थैंक्स टू यू। बहुत प्रणाम, महाराज जी को भी बहुत प्रणाम हम दोनों के तरफ से। और बाकी सब बातें तो होती रहेगी, किशन महाराज जी की बातें कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो और 10 साल बाद हो, चाहे वो और 50 साल बाद हो, चाहे वो सिर्फ किशन महाराज जी, विलायत खान साहब, ये सब सब आए हुए हैं हम लोगों के यहाँ पे, जस्ट लाइक दे वर लिटरली एकदम फरिश्ते। दे आर एक्चुअली, नॉट दे वेर, वी कांट जस्ट से। आज तक मैं महाराज जी के नाम के आगे लेट नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि अभी भी वो है। क्या बात, कभी भी मोटिवेशन जी, कभी भी मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाता है तो हम पुरिया का रिकॉर्ड चलाते हैं, तो खान साहब और महाराज जी दोनों का जो वो सुनते हैं, जब मोटिवेशन डाउन हो तो वो अपलिफ्ट हो जाता है। कहीं भी हमारा
बराबर इंस्पिरेशन हमेशा है, था, है और रहेगा, और फ्यूचर में भी रहेगा। हमारे बाद वाले जो जनरेशन आएंगे उसको भी रहेगा। तो थैंक यू बहुत, मतलब क्या बोले, जितना भी प्रणाम, थैंक यू जितना भी बोले बहुत कम हो जाएगा। चाचा जी महाराज जी आपको भी एकदम, हम तीनों के तरफ से आपको प्रणाम, हम दोनों के तरफ से संजू भैया और महाराज जी को प्रणाम, और मेरे तरफ से आप तीनों को प्रणाम। This answer will be given later on. Don't worry. बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छे से रहिए, एकदम सही रहिए, सुस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, और सिर्फ म्यूजिक सुनाते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अरे वाह, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा संजू लाल, आशीर्वाद दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।